सुजील जैन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे जीवन की व्यथाएं और कथाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, राइट। और हम लोगों को क्या लग रहा है, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो यू हैव पीपल आउट देयर। ऐसे इतने सारे पोस्ट आ चुके हैं ना, आई मीन लाइक देयर आर मोर देन 4 lakh पोस्ट लाइक दैट ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, जिसमें इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक आई एम देयर टू लिसन। हम लोगों से नहीं मतलब है, हमें खुद से मतलब है, राइट। हमें पता है हमें कैसे तरीका निकालना चीज़ों से डील करने का। सो लेट्स figure out that way. So as human being, we are like really naturally expressive about our happiness. Even an introvert person can be expressive about their happiness, but when it comes to sadness or grief और कोई भी दुख भरी बात हम नहीं express कर पाते. Even the most expressive person cannot also express, and the reason being, I'll tell you. If you're going to a florist shop and you're buying a bouquet, it won't take much time for you to say yes, make the bouquet very beautiful because I want to propose to the love of my life. And if you're going to the same florist shop, if you're buying a funeral bouquet, you might not just say कि my grandfather died today. All right, so this is how we are, क्योंकि the sadness and the misery and the grief is very personal, but the happiness is not that. It is personal again, but the feeling is so overwhelming that you want to share it with the world, because you know the world will not make fun of you, because they will be like, you know, congratulating you, because you know इसका जो reciprocation है वो कैसा होगा. But when it comes to sadness, you don't know कि इसका reciprocation कैसा होगा, क्योंकि खुशी का reciprocation चाहे किसी के मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट हो ना, तब भी वो congratulations ही बोलता है. But sadness का reciprocation ऐसा नहीं होता. If you're telling a sad story to someone, 10 different people might react in a different way, and you don't know those reaction. But when you are telling that you have, you know, graduated, you have topped the university, everybody will say congratulations. So this is how we have grown up understanding the society, and there's nothing wrong with it, क्योंकि ऐसे ही होता है. But now if you're sad, if you're feeling anything that is, you know, you want to share with someone, or there are people who feel certain things, they are sad but they would not want to open. That is the worst thing to do to yourself, because yaar, listen, शेयरिंग डज नॉट मीन इट विल हेल्प यू रिलीज योर पेन. नहीं, वो बोलते हैं ना, बांट के दुख कम होता है. बांट के दुख उतना ही रहता है, कम नहीं होता है. जस्ट तुम किसी को बता देते हो तो तुम्हारे अंदर से लेट आउट हो जाता है एक बार के लिए. सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू. दुख कम नहीं होता है बांटने से हल्का महसूस होता है. तो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग, दैट्स व्हाट वी फील. अगर तुम किसी को दुख बता दोगे तो तुम्हारा दुख अगर उससे कम हो रहा है, तुम 10 जनों को बता दो, उससे खत्म हो जाना चाहिए, राइट. क्योंकि एक को बता के 20% कम हुआ है, दूसरे को बता के 20 + 20 40 कम होगा, बट कम नहीं होता है. वो हल्का महसूस होता है क्योंकि तुमने अपने अंदर से कोई बात बाहर निकाली है. तो यू आर फीलिंग लाइटर ऑन योर चेस्ट दैट यू वर नॉट फीलिंग बिफोर. दैट्स व्हाट इट हैपेंस. एंड नाउ टेलिंग समवन will not help you get the solution. This is not why we share. We don't share things कि हमें किसी से solution मिल जाएगा या कोई हमारी problem solve कर देगा, कि somebody will be there for us when we need. That's not the reason. We share problems with people to figure out the best way to deal with it. That is the reason why we share. It is not always, क्योंकि कई ऐसी problems होती हैं जिनके कोई solution नहीं होते, but you have to figure out a way to deal with that problem to keep your mental sanity, right? क्योंकि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें तुम स्टक हो गए, जिसका तुम्हें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या है, तो तुम उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी खराब कर दोगे, राइट. तुम्हें उसका कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा. सो आई विल गिव यू अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ दिस. मार्क ज़करबर्ग ईयर्स अगो पोस्टेड अ पोस्ट ऑन हिज फेसबुक राइटिंग दैट उसकी और उसकी वाइफ के कई मिसकैरेजेस हो गए थे, ठीक है. दे कुडंट कंसीव अ बेबी फॉर लॉन्ग टाइम. 3 या 4 मिसकैरेजेस हो गए थे. नंबर कुड बी रॉन्ग, बट इट वॉज मोर देन 2 फॉर श्योर, less than 5 also. So once they went on a dinner party with their friends, and one of their friends said कि उसकी वाइफ के भी मिसकैरेज हो गए हैं. किसी को नहीं पता, तो मिसकैरेज इज़ लाइक पेट में बच्चे का मर जाना. सो जब उन्होंने ये सुना, दे ऑल्सो ओपनड अबाउट देयर प्रॉब्लम, एंड दे वर गोइंग थ्रू अ मिजरेबल टाइम थिंकिंग कि दे वोंट बी एबल टू हैव अ बेबी, बिकॉज बार बार उसकी वाइफ के साथ ये हो रहा था. एंड दे कुड अफोर्ड ऑल द हेल्प, बट दे कुडंट फाइंड अ सोल्यूशन टू इट, कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है. So when the friend said कि उसके साथ भी हो रहा है, then other friends also started saying कि हाँ उसके किसी cousin के साथ हो रहा है, and people they know are also going through the same thing. And he felt relieved in that moment, thinking कि oh my God, he's not the only one who's suffering from this problem. There are a lot of people who are suffering from this problem now. This does not bring him to the solution, but this brings him to a point where he can see other people going through the same problem, other people also struggling, and also he knows कि if other people are dealing and they are also able to have a baby later, then I also have a hope to reach there, and I should not feel
so miserable about this situation कि हाँ इससे मतलब because of this I might never have a baby. So he specifically mentioned this in his post, writing this everything, the story that I'm telling, he has written that, and he told कि sharing helps. This is how it helps. When you tell people around you, you may not find the solution to your problem, but you may find other people also struggling with it, and you feel empathic towards them, and you can talk it out, and you can find how they are dealing with that situation, how they are keeping their mental sanity. क्योंकि this is something, इसका कोई solution नहीं है ना, मतलब like it could be different for one couple, it could be different for another couple, so there could not be one solution for this thing कि किसी का miscarriage हो रहा है. So what I'm trying to tell you, अगर तुम्हें कोई चीज़ feel हो रही है और तुम किसी को बताते हो या नहीं बता रहे हो, तो नहीं बताने का रीज़न सिर्फ ये होता है यू फील वीक. तुम्हें लगता है हम किसी और को पावर दे रहे हैं हमें डिस्ट्रॉय करने की, कि अगर उसे हमारी वीकनेस पता चल गया, दुख पता चल गया, तो या तो वो हमें किसी दिन डिमीन कर देगा, ताना मार देगा, या क्या पता वो समझ ही नहीं पाए. बहुत सारे लोग अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच के नहीं बताते, but you not telling it, you're harming yourself, because there are a lot of people going through the same thing. Until you open your mouth, you will never know what exactly it is from other person's eye, कि वो कैसे देख रहा है उस प्रॉब्लम को. हो सकता है जो, क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, उसको वो सोल्यूशंस नज़र नहीं आते, और जो इंसान सुन रहा होता है ना, वो उस प्रॉब्लम में नहीं है, तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता सकता है जो तुम्हें पता भी नहीं, जो शायद तुम सोच भी नहीं पाए हो, क्योंकि तुम इतना ही ग्रसित हो खुद की उन समस्याओं में कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा. और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो चीज़ें बांटना या किसी से शेयर करना इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिगरिंग आउट कि येस देर आर प्रॉब्लम्स, दे एग्जिस्ट नॉट जस्ट विद यू बट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मे बी if you're sharing with 2-3 people and you're not finding your answer, you're not getting what you want to hear, don't just stop there यार, don't just give up. मतलब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने बचपन में चलना सीखा था तो क्या तुम्हें एक बार खड़ा करके बताया गया था पैर से चलो तुम सीख गए थे? नहीं ना, it took you 6 months or an year that you started walking. मतलब जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो ढंग से चलना सीखता है, तो वो तब से क्रॉल ही कर रहा होता है ना धीरे धीरे. तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये चीज़ इतनी आसानी से हो जाएगी? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिली लाइफ में या कोई भी इशू आ रहा है और इमीडिएटली वो सोल्यूशन मिल जाना चाहिए. तुमने एक दोस्त को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, क्यों नहीं मिला सोल्यूशन? ओ माय गॉड, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, क्यों? तुमने ABCD इतनी आसानी से सीखी. तुमने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें पहली बार सीखी, क्या तुमने इतनी आसानी से सीखी थी? तुमने जो 10th में बोर्ड में टॉप किया है या कहीं पे भी अपनी लाइफ में कोई विक्ट्री हासिल किया, कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ जीत के आ रहा है, क्या वो इतनी आसानी से होती है? नहीं होती है ना. तो तुम्हें क्यों लगता है कि चीज़ों के सोल्यूशन या कोई भी बात का जवाब आसानी से मिल जाता है? इट टेक्स टाइम, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू कैन नॉट जस्ट रश इन टू थिंग्स लाइक दैट. दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. कोई भी चीज़, तुम खाना भी बनाते हो ना, सब्जी को पकने में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, और हर सब्जी को पकने में अलग टाइम लगता है. तो इफ़ यू विल हैव अ टाइम लाइन, इफ़ यू हैव अ क्लॉक टिकिंग ऑन इन योर हेड कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. Things are totally different when you're talking to a different person. So with one person, that person might take a lot of time to understand you, and the other person might not even need a word for you to say, और उसको ऐसे ही समझ में आ जाए कि yes you are sad. So things are different and it has nothing to do with you know someone from this long or that long. ये बातें अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि तुम किसी को 10 साल से जानते हो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझेगा, और किसी को तुम 10 दिन से या 10 महीनों से जानते हो तुम्हें कम अच्छे से समझेगा. ऐसा नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हाउ मच दे आर इन्वेस्टेड इन यू, हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट यू एंड ट्राइंग टू हेल्प यू. एंड telling 10 different people, and until keep telling to the people whatever you want to say until you reach to a point where you are hearing what you want to hear. And if you have trouble sharing with your friends, family, why not get on an app where you meet strangers, talk to strangers, they will never come back and say anything to you. That's the best way, because यार आज के टाइम में इतने busy है ना लोग अपनी लाइफ में, and people really don't share things much with their relatives or in the family, because they're afraid कि हम कैसे बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं that you don't feel like sharing. For those, you can opt these platforms, you can talk to strangers, you can always come and talk here in the comments. I can help you guys. The point is that कि अपने अंदर कोई बात मत रखो, और ये सारी बातें कि तुम किसी को कॉल करोगे कोई तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा नहीं होगा, सी डिपेंडेंट, दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स. ओके, ये मतलब कहने में अच्छा लगता है. Today somebody expired and there are thousands, lakhs of posts out there. जब लोग जिंदा होते हैं तो तुम कितना उनके लिए पोस्ट करते हो? कोई नहीं करता है. So it is like in a second you forget, and in a blink of second everything changes in life. So given all those scenario, what I'm trying to tell you here is कि अगर तुम्हें किसी को कुछ बताना है, अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है मेंटली,
तुम्हें उस पर अटेंशन उतनी पे करने की ज़रूरत है जैसे तुम्हें वायरल हुआ है ना, तो तुम खुद पे अटेंशन पे करते हो एंड यू गो एंड सी अ डॉक्टर इफ़ यू हैव अ टूथ पेन, इफ़ यू हैव व्हाट डू वी कॉल दैट, विजडम टूथ का पेन। सबको होता है राइट, सबको होता है एक बार लाइफ में। तो तुम क्या उसको इग्नोर कर देते हो? क्या वो होता है तो तुम ये कहते हो यार नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ले सही हो जाएगा? नहीं ना। तो जब तुम परेशान हो, तुम्हें एंशियस फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अगर कोई इंसान तुम्हें ऐसी एडवाइस दे रहा है ना नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ले ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। डोंट गो टू दैट्स हाउ यू विल ऑल्सो नो दीज आर नॉट योर पीपल। द पीपल हु आर नॉट गिविंग यू राइट सोल्यूशन, right ways to deal with the things that you're going through are not your people, and it is good to figure out these people as early as possible in your life. क्यों तुम उनको साथ भर जिंदगी में लेकर के चलो अगर वो वर्दी ही नहीं है तो? So you have to understand sharing is really very important, and why it is important is because as you let it out in different circles and different set of people, you learn about those people also. There will be people mocking at you. Isn't it good that you have figured those people out अभी कि वो तुम पे हंस रहे हैं, तो तुम्हें पता है इन लोगों के साथ मुझे लंबे टाइम तक एसोसिएशन नहीं रखना, है टू कट देम ऑफ? Isn't it better that way कि तुम्हें सच्चाई पता लग रही है लोगों की? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना जो कि सच है कि अच्छाई में सब काम आता है। जो बुराई के टाइम पे जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हारी बात सुन रहा है, दैट इज एक्चुअली अ ट्रू पर्सन. सो दैट्स हाउ यू नो ऑल्सो. So on this note, I would like to end this video, and what I was trying to tell you is that why it is important to speak and why you should speak, and this helps you in a lot of cutting down the unnecessary people in your life. And for anything else you guys want to talk, please leave in comments. I'll make video on that, of course. And one thing that you have learned from watching all these videos and posts, I know कि मतलब पैसा वैसा कुछ भी आ जाए लाइफ में, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो रहती है. सो सी, हर प्रॉब्लम को है ना इतना बड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको इतना छोटा रखने की भी ज़रूरत नहीं है. कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ पे टोल ले ले, इतना इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है. ठीक है, भगवान ने जैसे सबको बनाया वैसे तुम्हें बनाया. जितनी लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी तुम्हारी भी है, बट उसका टेक केयर तुम्हें करना पड़ेगा. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लग जाओ उसके पीछे, उसका सोल्यूशन ढूंढने. जैसे जॉब में कोई असाइनमेंट नहीं होता, एक्सेल चलना बंद होता है, तो तुम अपग्रेड करते हो ना अपने सिस्टम को कि वो चले. तो वैसे ही अपनी लाइफ में भी करो ना, चीज़ों को रीस्टार्ट करो, कुछ तो करो भाई. तरीके अपने आप मिल जाएंगे और भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं. सो डोंट फील हेल्पलेस ऑल द टाइम. ट्राई टू फिगर आउट सोल्यूशन. एवरीथिंग विल fall in place and you will meet the right kind of people. You will meet all those things. I don't know why this makhi is coming in between all this video. So you will meet those people who will be the right people for you, and you will reach to the solution or whatever you are looking for, but you have to look for it. अपने आप तो कवा भी मुंह में नहीं आता ना. You just have to use your hand and just take the रोटी का पीस and put it in सब्जी, then you eat it, right? तो ऐसे आसानी से इस दुनिया में कुछ नहीं होता. अगर होता तो फिर मेहनत वर्ड ही नहीं बनता ना यार, फिर उसकी वैल्यू ही कहाँ होती उस विक्ट्री की. सो गाइज, आई हैव टेकन इट टू लॉन्ग एंड आई जस्ट होप आई कैन एडिट दिस वीडियो. लाइट का बड़ा इशू है और भी बहुत सारे इशू हैं लाइफ में. ऐसे थोड़ी ना सब कुछ आसानी से मिलता है, नहीं मिलता है. ओके गाइज, टेकन टू लॉन्ग. I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye. Take care, and please take care. When I say take care, I mean that you take care. All right, don't just take it as like a sentence I'm saying take care. No, take care.